cos x into cos x to the power 8. क्यों ऐसे किया देखना एक बार, सो दैट कि यहाँ पे cos x, यहाँ पे जो cos x है जैसे है वैसे रहेगा, और ये पूरा एक्सप्रेशन को साइन में हम एक्सप्रेस कर देंगे. हाउ वी कैन राइट cos x होल टू द पावर 8 एज cos square x whole to the power 4, because you know that power gets multiplied, तो ये 2 4 जा क्या हो जाएगा 8. Now why exactly cos square x whole to the power 4? Why not cos x whole to the power 4 का whole square? Because I can easily express cos square x as 1 minus sin square x. हम लोग cos square x को क्या लिख सकते हैं? 1 minus sin square x. Now we can substitute sin x with t, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा cos x. So dx will become 1 by cos x into dt. Is this clear? Because cos x cancel हो जाएगा. So I becomes, I'm directly cancelling cos x. जहां पे sin x है वहां पे t लगा दो, तो ये हो जाएगा 1 minus t square whole to the power 4 divided by t dt. I can write 1 minus t square whole to the power 4 as 1 minus t square whole square into 1 minus t square का whole square. Is this clear everyone? यहाँ पे पावर में 4 है, तो 1 minus t square का whole square into 1 minus t square का whole square. Apply a minus b whole square formula, which is a square plus b square minus 2ab, a square plus b square minus 2ab divided by t. अब ये दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना, ओके. Then we have one मतलब कांस्टेंट एक ही है, t to the power 4 plus t to the power 4 is 2t to the power 4. 2t to the power 4 plus 4t to the power 4 is 6t to the power 4 minus 2t square minus 2t square is minus 4t square. Then we have t to the power 8, okay. Then we have minus t to the power 6 minus 2t to the power 6 minus 2t to the power 6 is minus 4t to the power 6. अब बस स्प्लिट कर लेना, हो जाएगा. समझ में आया? तो 1 by t 6t to the power 4 by t 4t square by t t to the power 8 by t, सबको अलग अलग कर लेना, you'll get the answer and then you can integrate. सबको स्प्लिट करके सारे टर्म्स को उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं. We can write this as 1 by t plus 6t cube, okay. We can write 6t cube minus 4t, because 4t square by t becomes what? 4t. T to the power 8 by t becomes t to the power 7. 4t to the power 6 by t becomes t to the power 5. There's the answer. I mean, sorry. उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देना. Copy done first. ठीक है, समझ में आया? तो ये अगर कुछ कैलकुलेशन कुछ इस स्टेप के बाद यहाँ तक, तो आई एम 100% श्योर दैट कुछ मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है. तो ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एडिशन किया ना न्यूमरेटर में, वो बस चेक कर लेना तुम लोग, कुछ टर्म्स छोटे ना, ओके. सारा टर्म्स है, बस स्प्लिट कर लो, उसका इंटीग्रेट.
Now next is number 40. ध्यान देना। Now wherever you have odd parts, देखो एक बार ध्यान देना, जहां पे भी odd हो ना उसमें हम लोग हमेशा सब्स्टिट्यूशन का ही दिमाग लगाएंगे। We can write this as sin x into sin x whole to the power 4. We can write sin to the power 4x as sin square x का whole square. Now write sin square x as 1 minus cos square x. Okay, write cos x as, cos x को t ले लेना, see sin x gets cancelled, ये माइनस बाहर ले लेना, ये हो जाएगा 1 minus t square का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय t to the power 4. अप्लाई a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको इसे स्प्लिट करना, वन बाई टी टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज टी टू द पावर -4, ये 1 हो गया. Okay, and then you can integrate and put the value of t equals to cos x. Okay, I hope it's clear. Just got doubt from now today first of all we'll start integration by parts. That is number 20. First we'll start integration by parts today. That is question number 20. ये कॉपी करना जल्दी से. I'm erasing this now. Now, see everyone. जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था तुम लोगों की इंटीग्रेशन में ऐसा कोई u v रूल होता नहीं है. डिफरेंशिएशन में क्या होता है? u into v रूल होता है. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में u by v रूल भी होते हैं. स्टार्टिंग में मैंने बोला था u into v रूल ऐसा कुछ होता नहीं है, u by v रूल भी नहीं होता है. बट you have an integration by parts, मतलब u v रूल होता है. And what is that? First write down the formula and then I'll explain you. ये कैसे अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं, सारा चीज क्लियर हो जाएगा. पहले तुम लोग जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं पहले वो कॉपी करो. So the topic is we are starting integration by parts.
This is integration by parts. The name of the topic is integration by parts. ये टॉपिक का नाम है. Now, write down the formula. Capital ones. Exponential function. Exponential function. So everyone has copied. Now write down. Note, पहला note लिखो, write down. If, write down. Done, everyone. Now write down. So write down first note here. Okay. Star दे दो और एक note लिखो. Write down. In, just write down. If logarithmic function or inverse trigonometric function, if logarithmic function or inverse trigonometric function is the only function in the integrand, then take 1 as the second function. If logarithmic function or inverse trigonometric function is the
only function in the integrand, then take 1 as the second function. Then take 1 as the second function and apply by parts. By parts is also called product rule in integration. Integration में product rule, that is UV rule को क्या बोलते हैं हम लोग? Integration by parts. अब एक बार ध्यान से देखना. Suppose you have arithmetic expression like 3 to the power 4 divided by 9 into 4 plus 6 minus 1 into 7. ऐसे suppose एक arithmetic expression है. एक बात बताओ, अगर मान लो ये arithmetic expression है और अगर तुमको ये बोर्डमास रूल नहीं पता होता, इफ यू डोंट फॉलो बोर्डमास रूल, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग आंसर आएगा और अलग अलग लोगों का आंसर अलग अलग आएगा. व्हाई? बिकॉज दिस रूल गाइड्स अस कि पहले क्या करना है. पहले हमको ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन पार्ट को फॉलो करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन पार्ट एंड सो ऑन. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? बट अगर मान लो ये रूल नहीं होता तो कोई ऐसे करता, कोई क्या करता, पहले करता 4 plus 6 10, उसके बाद फिर 1 7 जा 7 कर देता, 10 minus 7 3 कर देता, मतलब कुछ भी कर देता है कि नहीं. बट एज Bodmas rule guides us to solve an arithmetic expression, everyone gets the uniform answer. Now exactly same way इंटीग्रेशन में जब भी कोई दो चीज का प्रोडक्ट हो तो हम लोग अपने हिसाब से किसी को u और किसी को v नहीं ले सकते. बट अगर हम ले तो क्या रॉन्ग होगा? रॉन्ग नहीं होगा. बट व्हाई डोंट वी टेक देम? अगर रॉन्ग ही नहीं होगा तो फिर लेते क्यों नहीं हम? बिकॉज द रीजन इज बिकॉज इफ यू डोंट फॉलो दिस रूल कॉल्ड आइलेट रूल. हम लोग जैसे मान लो हम लोग को दो चीज का प्रोडक्ट दिया हुआ है, जैसे एक बार मान लेते, पहले एग्जांपल दिखाते हैं. सपोज मान लो x sin x है. यहाँ पे दो चीज का, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है. कौन से दो फंक्शंस है यहाँ पे? एक है अलजेब्रिक फंक्शन a और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन t. नाउ डिफरेंशिएशन अगर होता तो फिर हम क्या करते? तब हम लोग किसी एक को u ले लेते और दूसरा फंक्शन को v ले लेते और हम लोग u v रूल अप्लाई करके कर लेते. बट एक्चुअली इंटीग्रेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है. डिफरेंशिएशन में कोई भी चीज को u और किसी दूसरे फंक्शन को v ले सकते हैं, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं कर सकते. हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक रूल है, देखो मैंने एरो टॉप से बॉटम तक बनाया. मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट प्रायोरिटी इसका है. मतलब सबसे पहले ये इनवर्स फंक्शन है, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो अगर हम आइलेट रूल को देखें तो उसके हिसाब से मुझे पहले किसको रखना पड़ेगा? देखो पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर में अगर हम फॉलो करें तो पहले कौन सा फंक्शन आएगा? आइलेट. ए पहले आएगा, उसके बाद टी आएगा. इसका मतलब ये ऑलरेडी अरेंज्ड है. किस फॉर्म में अरेंज्ड है? u into v के फॉर्म में अरेंज्ड है. So let us consider first function as u and the second function as v and apply the formula that is uv rule. अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. हम ये अगर हम इस चीज को फॉलो ना करें तो क्या होगा प्रॉब्लम? इस रूल को फॉलो ना करके अगर हम sin x को u ले लें और x को v ले लें तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि सम एंड नहीं होगा. क्या नहीं होगा? सम विल नॉट एंड. सम विल कीप ऑन, आई मीन इट विल कीप ऑन, आई मीन वो बड़ा होते जाएगा. वो एक एक करके वो जो है कभी भी टर्मिनेट, कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी सॉल्व नहीं होगा. वो क्या होगा? एक एक करके एक वापस एक इंटीग्रेंड आएगा, वापस तुम उसको इंटीग्रेट कर एक और नया इंटीग्रेंड आ जाएगा. मतलब कभी खत्म नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई इट इज एडवाइज्ड दैट इन इंटीग्रेशन whenever we are product of two functions, apply Eilert rule, I-L-A-T-E, Eilert rule, and arrange the terms, arrange the functions as first function and or second function. First function and second function किस फॉर्म में हम लोग अरेंज करेंगे? किस रूल को देख के फॉलो करेंगे हम लोग? Eilert rule को देख के. तो इसके हिसाब से उन्होंने देखा और इसको अरेंज कर दिया. अब पहला फंक्शन को u ले लिया, दूसरा फंक्शन को v. Let's apply the formula. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला u that is x इंटीग्रेशन ऑफ v that is sin x माइनस, देखो यहाँ पे माइनस के बाद जिस चीज को हमको इंटीग्रेट करना है, माइनस के बाद जिस चीज को इंटीग्रेट करना है, ध्यान देना, उसके अंदर पहले दो चीज है. देखो ध्यान से, जिस चीज को इंटीग्रेट करना है उसके अंदर दो चीज है. क्या दो चीज है? ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x,
ये रहा देखो डी डी एक्स ऑफ यू, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज साइन एक्स, और जो रिजल्ट आएगा उसको हमको वापस इंटीग्रेशन करना। बात को ध्यान से समझना है। फर्स्ट फंक्शन को यू ले लिया, सेकंड फंक्शन को भी, एंड फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। फॉर्मूला क्या है, u दैट इज x इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज sin x माइनस इंटीग्रेशन क्या चीज का करना है हमको, ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज हाउ मच, माइनस cos x। अभी ये चीज बाद में करना है, ये वाला चीज बाद में। अभी पहले हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसको सॉल्व कर लें। ddx of x is 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin x is minus cos x। और एक चीज नोट करना, इसका आंसर देखो एक बार, इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा क्योंकि दोनों सेम चीज। सो वी हैव माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस cos x। और यहाँ पे अब एक चीज ही बचा दैट इज cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x plus is this okay everyone? So this is how we apply Eilert rule and arrange the two given functions in the integral, okay, in the form uv, and we apply the formula. Okay, so everyone, after completing this sum, you are going to do this sum that is integration of x log x, then x square e to the power x. These are the two sums which you are going to do it right now. If you have not understood this sum, you may ask it out. Have you done this sum? Okay. तो फिर आइलेट रूल के हिसाब से पहले आएगा लॉग, उसके आएगा, उसके बाद आएगा एल्जेब्रिक फंक्शन।
दूसरा वाला जो सम दिया है ना मैंने, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा पेशेंस रखना। जो क्या होगा इसमें देखना, एक बार इंटीग्रेशन करोगे वापस दो चीज का प्रोडक्ट आएगा, वापस आइलेट रूल फॉलो करके अरेंज कर लेना एंड देन यू इंटीग्रेट, आराम से कर लिया। नेक्स्ट एंड नाउ द लास्ट सम, कोई किसी का हुआ लास्ट वाला सम? ना जिसको लास्ट सम समझ में नहीं आया ठीक से, एक बार देखना। सो लेट अस अप्लाई आइलेट रूल। अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल पहले अलजेब्रिक फंक्शन आएगा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला, इट्स u दैट इज x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज e टू द पावर x ddx of first function that is x square e to the power x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e to the power x ddx of x square will be 2x. Again we are finding that we have product of two functions. Keep two constant which is outside, two constant इसको बाहर रखना, और बाकी जो पार्ट है इसमें uv रूल अप्लाई करना। फॉर्मूला क्या है, u that is x integration of v that is e to the power x ddx of x integration of e to the power x is e to the power x. What is ddx of x? It is 1. e to the power x का इंटीग्रेशन is e to the power x, और जो रिजल्ट आएगा उसका हम लोग को वापस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट देना मत भूलना। बहुत लोग क्या करेगा देखना, एक बार ब्रैकेट देना भूल जाएगा। देखो ब्रैकेट नहीं देने का मतलब क्या हो जाएगा, देखो मतलब कुछ और हो जाएगा। टू ये पूरा इंटीग्रेशन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में था, फॉर्मूला अप्लाई किया, अगर तुम ब्रैकेट ना दो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि टू सिर्फ पहला वाला टर्म के साथ प्रोडक्ट फॉर्म है, ये गलत है। जबकि क्या टू पूरा के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, देखो टू इज मल्टीप्लाइड विद दिस होल इंटीग्रल। Now let's open the bracket. So we have minus 2x e to the power x minus minus plus 2 1 e to the power x. अब यहाँ पे एक ही फंक्शन है, that is e to the power x. So what is e to the power x का इंटीग्रेशन? It is e to the power x and finally we have to be plus. Is this clear everyone? Next. Copy कर लो पहले. Now I'll just give you one sum. I want everyone to try that, okay? It is x square. It's there in PDF. Log of 2x plus 1. करो तो एक बार.
कौन है, किसका है ये, कौन है ये? मोबाइल डिवाइस म्यूट रखना। अच्छा, ये वाला हुआ सब एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ 2x प्लस 1। यस, फिर से नहीं हुआ, ट्राई कर रहे हैं या मैं बता दूं? हुआ, गुड। जिसका नहीं हुआ एक बार देखना बोल के। So the formula is u, that is log of 2x plus 1 into integration of v dx, that is x square, integration of x square is x cube by 3, ddx of log x is how much, 1 by x, और उसके बाद 2x plus 1 का फर्दर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2, x square का हो जाएगा x cube by 3, 2 by 3 is a constant, you can keep it outside. Now who can tell me इस वाले में क्या करना है, ये इंटीग्रल में डिवाइड, बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री, जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है। सो वी हैव हाफ एक्स स्क्वायर, हाफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x इज हाउ मच, हाफ इंटू 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब। Okay, what is multiplied to 2x to get minus half x square? Minus 1 by 4x. टू एक्स में क्या मल्टीप्लाई करने से x by 4 आएगा, 1 by 8। You can write this as question, that is half x square इसको 2/3 को, अब उसके बाद सारा को अलग अलग कर देना, ठीक है, मतलब अलग सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देना, माइनस प्लस माइनस
2 by 3 into half is what? 1 by 3. Minus minus plus. 2 by 3 into 1 by 4 is how much? 1 by 6. Okay. Minus plus minus. 2 by 3 into 1 by 8 is 1 by 12. अब देखो प्लस इंटू माइनस इज माइनस माइनस 1 by 8 इंटू माइनस केवल इसको कंप्लीट ओके So the last part ये बता रहे थे ये वाली टर्म minus minus plus 2 by 3 into 1 by 8 is 1 by 2. Now you can integrate. Okay. x square का इंटीग्रेशन हो गया x cube by 3 x का इंटीग्रेशन इज x square by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx is x और ये हो गया log of mod 2x plus 1 उसके बाद into half y into half बताओ तो एक बार 2x plus 1 को हम लोगों ने x एल्सियम किया था ठीक है ना तो हाँ इसका डेरिवेटिव का रेशियो नाउ नेक्स्ट हो गया कॉपी करो now now we will try to understand this sum जो मैं बता रहा हूँ एक बार ध्यान देना suppose we have x square into sine cube x let's take this sum okay x square into sine cube x just wait let me take first of all x cube into e to the power x square okay? एक बार ये एक सम फाइल कर देखते हैं और एक और सम साइन रूट एक्स नाउ सबसे पहला चीज आज जब मैंने यूवी रूल बताया तो सबसे पहला चीज तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि कैसे पता चलेगा तुम लोगों की सम यूवी रूल से करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है दिस इज द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट कंफ्यूजन आफ्टर वी स्टार्ट दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सो जस्ट अभी मैं जो बता रहा हूं तुम लोग को वो चीज को ध्यान से एक बार नोट करना नाउ इफ आई अप्लाई आइलेट रूल अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी फाइंड दैट सबसे पहले कौन सा फंक्शन आएगा यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन
उसके बाद आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तुमको क्या करना है ध्यान देना, जो सेकंड फंक्शन होगा उसको अलग से मतलब सेपरेटली चेक कर लेना कि क्या ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है या नहीं। एक और मैं लिख रहा हूं सब पहले, उसके बाद मैं चीज समझाता हूं। तीसरा देखना है, आई रिपीट वंस अगेन, पहले तुम लोग आइलेट रूल अप्लाई कर लेना। तो आइलेट रूल अप्लाई करने के बाद अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे पहले कौन सा फंक्शन आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पहले अलजेब्रिक फंक्शन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, ये हम बाद में बताते हैं, पहले ये दो देख लो ध्यान से। नाउ वी फाइंड दैट हमेशा क्या करना चाहिए जब भी दो चीज का प्रोडक्ट है और तुम्हारे दिमाग में अगर कंफ्यूजन चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन करें कि बाई पार्ट्स अप्लाई करें, तो मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। आफ्टर अप्लाइंग आइलेट रूल, जो सेकंड फंक्शन है उसको अकेले चेक करो कि क्या वो आई मीन इंडिपेंडेंट, मतलब वो अकेले क्या वो इंटीग्रेबल है या नहीं, मतलब e to the power x square क्या इंटीग्रेबल फॉर्म में है। नाउ व्हाई आई एम चेकिंग e to the power x square इंटीग्रेबल फॉर्म में है, बिकॉज़ if you apply UV rule, if you apply UV rule, we find that जो सेकंड फंक्शन होता है वो हमेशा इंटीग्रेट होता है। देखो सेकंड फंक्शन हमेशा इंटीग्रेट होता है, चेक कर लो पहले, ये सेकंड फंक्शन ये इंटीग्रेट हो रहा है, सेकंड फंक्शन यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग कि क्या e to the power x square इंटीग्रेबल फॉर्म में है या नहीं, और sin cube x भी यहाँ पे इंटीग्रेबल फॉर्म में है या नहीं। चलिए आंसर, is e to the power x square in integrable form? क्या तुम, yes, okay, how you are going to integrate e to the power x square, tell me. If it is in integrable form, how you are going to integrate e to the power x square? Can you just answer me how? Yes, बताओ तो कैसे तुम इंटीग्रेट करोगे e to the power x square को? क्यों नहीं होगा बताओ, बताओ क्यों नहीं होगा। See, because if you apply e to the power x का फॉर्मूला, you are finding that x के जगह पे x स्क्वायर है, तो क्या ये फंक्शन इंटीग्रेबल फॉर्म में है? नहीं है। किसके कारण नहीं है बताओ तो, x स्क्वायर के कारण इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है। तो जिसके कारण ऐसा प्रॉब्लम अराइज हुआ उस पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर दो। नाउ टेल मी, क्या sin क्यूब x इंटीग्रेबल फॉर्म में है? यस, क्या sin क्यूब x नहीं है इंटीग्रेबल फॉर्म में? हाउ कैन यू इंटीग्रेट sin क्यूब x? It's not in integrable form. So listen here everyone, there are two situations. One, if the second function is not in integrable form, if second function is not in integrable form, you either you go for substitution method. Second option is transform. What is the meaning of this word transform? Transform means उसको सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करो। यहां पे हम सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, तो जिसके कारण प्रॉब्लम है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। बात को ध्यान से समझना, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है दोनों केस में। इस केस में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो क्या किया मैंने, जिस पार्ट के कारण प्रॉब्लम अराइज हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। इस केस में ट्रांसफॉर्म करना पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? Because you all know that sin 3a is 3 sin a minus 4 sin cube a. So what will be sin cube a? Sin cube a will be 3 sin a minus sin 3a, whole thing divided by 4. Are you understanding? So there are two situations when the second function is not in integrable form. Second function is not in integrable form. There are two situations. Substitute, go for substitution. तो ये रहा एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल ये रहा, ठीक है, इसका एग्जांपल ये रहा, और इसके लिए एग्जांपल ये रहा, जिसपे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin क्यूब x की जगह पे 3 sin x minus sin 3x divided by 4 लिखेंगे। Is this okay everyone? Have you understood the concept first? Now यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया मैंने,
एक्स क्यूब जैसा है ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर की जगह पे टी, डी एक्स की जगह पे 1/2x dt, एक्स का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, हाफ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. See, after substitution, you cannot keep your function integral in terms of x. You have to replace in terms of t. How to do this? Put the value of x square equals to t. Okay. Now, can you do this by parts? Yes. Can you solve this by parts? Taking t as first function because it is an algebraic function. E to the power t as second function. Is this clear, everyone? Now here what you can do? You can keep 1/4 outside. Clear? And apply by parts, taking x square as first function and this entire thing as second function. मतलब पूरा चीज को सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन लेके यूवी रूल अप्लाई करना होगा. सबसे पहले तुम लोग एक काम करो, हेडिंग ये लिखो. पहले ये हेडिंग लिख लो. लिखने के बाद ये और ये लिखो. इसके नीचे ये क्वेश्चन लिखना, इसके नीचे ये क्वेश्चन लिखो. समझ में आया बात? ओके. इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, कंप्लीट करो. ये क्वेश्चन को यहां तक लिखो. अगर हो पा रहा है तो करो कंप्लीट, नहीं हो पा रहा है तो मैं बता दूं. डिड यू गेट माय पॉइंट? हेडिंग विल बी दिस, सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्म. सब्स्टिट्यूशन के नीचे ये एग्जांपल लिखना, ट्रांसफॉर्म के नीचे ये एग्जांपल लिखना. ये सम खाली क्वेश्चन लिखना. फिर सब्स्टिट्यूशन का ये जो सम है कंप्लीट करो. फिर ट्रांसफॉर्मेशन का ये यहां तक लिख के कंप्लीट करो. इफ यू आर नॉट एबल टू डू, आई कंप्लीट. आई थिंक दिस विल बी दिस यू कैन इजीली डू बिकॉज़ यहां पे हमको आइलेट रूल अप्लाई करके बस बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं. Yes. हाँ. जब क्या है दोनों? ये अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक है. ये तो अलजेब्रिक थोड़ी नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक है. साइन कॉस. अच्छा, सबका ये वाला कंप्लीट हुआ? ये वाला एवरीवन हैज कंप्लीटेड दिस सम. आंसर इज दिस. ओके. जहां पे टी है वहां पे एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर.
यहाँ पे ना देखो, तुम हमको पता है तुम लोग क्या सोच रहे होगे, क्यों ना इसको दोनों से मल्टीप्लाई करके अलग अलग बाई पार्ट में, बट वो लंबा हो जाएगा। समझ में आया तो बात, इट्स बेटर इसको यू लेना, इस पूरा को भी लेना, एकदम नहीं करना। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, इसका अब दूसरा वाला देखना एक बार, मैं अगर टफ लग रहा है तो मैं कंप्लीट, मैं भी कर रहा हूँ, तुम लोग भी कर रहे हो, खुद से तुम लोग भी ट्राई करो स्टेप बाय स्टेप। जहाँ पे तुम लोग मतलब अटक रहे हैं, जहाँ समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पे एक बार मेरे बोर्ड पे एक बार देख लेना कि क्या मैं कर रहा हूँ, उसके बाद वापस से तुम लोग कंटिन्यू कर लेना। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, formula is u, that is x square थोड़ा लंबा होगा ये सब। थ्री साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज -3 cos x, साइन 3x का क्या होगा, -1/3 cos 3x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ddx ऑफ x स्क्वायर इज 2x। ये और मैंने बोला था ना, ये दोनों पे अलग अलग दिमाग में बना, इसको इंटीग्रेट कर दिया, सेम रिजल्ट यहाँ पे लिख दो। Okay, now next. टू बाहर आ जाएगा, हाफ हो गया। Okay, now consider this as x, I mean sorry, this as u and this as v. Formula u, integration of v ठीक है, माइनस ddx of u, integration of v dx, माइनस प्लस माइनस हाफ x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -3 sin x प्लस cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 3x by 3, समझ में आ रही, क्यों 3x का डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल, तो 1/9 हो जाएगा ये, और इसको मल्टीप्लाई भी करते जाओ, माइनस प्लस माइनस, हाफ इंटू एक्स इज हाफ एक्स, माइनस माइनस प्लस हाफ, ddx of x is 1, क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पे एक ही फंक्शन है,
क्या है, सिर्फ ये, क्योंकि 1 इंटू, देखो 1 तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचेगा, अब इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो गया 3 cos x, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। दिस इज ओके है। देखो मैं क्यों बोल रहा था अवॉइड करने के लिए मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज उसमें होता क्या है कि तुम एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करते हो, जो भी था वहां पे साइन एक्स, और उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर साइन 3x जो भी था, इसमें अलग यू वैल्यू, इसमें अलग यू वैल्यू, बहुत लंबा हो जाता, समझ में आया? तो इसीलिए मैंने क्या किया, पूरा ये दो चीज को एक ही मतलब रख के कंबाइन करके इसको सॉल्व कर दिया। अब लाभ ये वाला समीकरण कॉपी करो पहले। Now who can tell me कि साइन रूट एक्स को कैसे इंटीग्रेट करना है? एनीवन? मतलब पहले ये बताओ मुझे कि साइन रूट एक्स का इंटीग्रेबल फॉर्म में है, बताओ देखो। यस, क्या साइन रूट एक्स नहीं है किसकी? अच्छा एक बात बताओ, तो जब इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं होगा है, तो क्या मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर पाऊंगा इंटीग्रेबल फॉर्म में? ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एंगल रूट एक्स है, तो उसको तो हम रूट तो हटा ही नहीं पाएंगे, तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन है, क्या बताओ तो? सब्स्टिट्यूशन। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसके कारण प्रॉब्लम में हम लोग रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आई विल बिकम साइन रूट एक्स की जगह पे टी लगा देना, dx की जगह पे, और जहाँ पे रूट एक्स है, क्योंकि x में तो नहीं रह सकते, मतलब नहीं हम लोग रख सकते, तो रूट एक्स की जगह पे टी। इज माय वॉइस ऑडिबल टू यू? इतना शांत है सब? यस, ओके। तो यहाँ पे अब क्या करना है पता है ना, इसको यूवी रूल अप्लाई करके सॉल्व कर दो। ओके, कॉपी डाउन फर्स्ट, कॉपी डाउन। हो गया ये कॉपी? कंप्लीट हुआ सबका ये?